Hello. Hi, everyone. Kids, if you can settle down, then we can start. On behalf of the Sahaj Foundation and the Kabir community of Mumbai, we welcome you today, the second day of the Kabir Festival. First of all, we would like to express our sincere gratitude to Somaya for the hospitality partners, for being our hospitality partners for this festival year after year and hosting all the artists here at the campus. Without their support, this festival would not be possible. Big hand for them. A special thanks to Professor Sundarajan and Professor Rajani for extending their helping hand so readily to us. The festival this year is a 4-day festival with multiple events citywide, fully free to the public. As you know, the festival is fully volunteer run and funded by the community. Through our small trust, Sahaj Foundation, which is funded by contributions from the Kabir community of Mumbai, we have been bringing to audiences all over the city mystic music from a variety of Indian traditions, not only during the festival, but all through the year. All events are always free and open to all. In case you are not already on our mailing list, do put down your names and email addresses at the door when leaving so that we can update you on our future events. Today's event is truly special for us because both performances show how much the philosophy of the mystics have influenced the life and culture of this country. We start the morning with Manzil Mystics. The Manzil Mystics started their journey in Manzil, a non-profit organization providing a community and resource for local youth from low-income backgrounds. Through its inspiring and self-composed songs, Manzil Mystics has been performing throughout Delhi and different parts of India for the last 4 years for a variety of events. Manzil Mystics believe that music is not just a part of entertainment, it is an alternative medium of teaching people good things. And I'll allow Anurag to introduce all the members of his band. Check. हेलो हेलो भैया मेरा वॉल्यूम बढ़ गया चेक हाय कैसे सब हैप्पी मॉर्निंग एंड फॉर दी हैप्पी लाइफ हम कबीर को जानना शुरू कर दिया था हमने अच्छा यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने बैग टांगा हुआ है आपको इरिटेशन नहीं हो रही जस्ट आस्किंग आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है मैं जस्ट पूछ रहा हूँ नहीं क्योंकि जब हम गाने लगेंगे तो हम चाहेंगे कि आप इन्जॉय करें बैग टांग के इन्जॉय करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ठीक है अच्छा हम ये देखना चाहते हैं आप जगे हुए हो क्या आप ऐसे ऐसे कर सकते हो अब ऐसे ऐसे कर सकते हो अब ऐसे ऐसे कर सकते हो अब ऐसे और ऐसे कर सकते हो चलो ठीक है वहाँ पर 2 सोए हुए हैं उन्होंने नहीं किया दोनों ने और वहाँ वाले लोगों ने भी नहीं किया देखो ऊपर वाले हो आप देखो चीटिंग नहीं करोगे ठीक है तो हमारा नाम मंजिल मिस्टिक्स है और ये हमारा पहला टाइम है हम जब मुंबई में आके परफॉर्म कर रहे हैं और कबीर फेस्टिवल में भी हमें हमारा पहला ये प्रोग्राम है और खुशी की बात यह है कि कबीर फेस्टिवल को 7 साल हो गए और हमारे बैंड को भी स्टार्ट हुए 7 साल हो गए यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे अच्छा यहाँ पर कोई है जो 14 साल या 13 या 14 साल का है कितने लोग हैं अच्छा 17 से 20 साल के बीच में कितने लोग हैं 17 to 20 हम में से बहुत सारे लोग 17 से 20 साल के थे जब ये बैंड स्टार्ट हुआ उसी टाइम से क्या हुआ था कि हमने 7वीं 8वीं क्लास में कबीर को पढ़ा था तो हमें पता था कि कोई कबीर नाम का कोई आया था उन्होंने कुछ बताया था और जो सबसे पहला दोहा हमें सिखाया गया था एंड मैंने चेक किया सभी के साथ ये था काल करे सो आज कर
हाँ, बहुत ही बढ़िया, तालियां। सो ऐसे ही हमने दोहा पढ़ा था, स्कूल पास करने के बाद समझ में आया, कॉलेज पास करने के बाद उसको अप्लाई करना शुरू किया, और फिर जाके हमें लगा कि ज़िंदगी बहुत आसान है। तो उन्हीं लेसन्स को हम आपके पास लेके आए हैं, जो हमने सीखा अपने टीचर से, आसपास लोगों से, उसी को हमने अपने शब्दों में पिरोया। सो जो पहला गाना है हमारा, उसका नाम है माटी की है काया, जो कि हमारी एक बैंड के मेंबर नीति पांडे ने लिखा है, और इसको कंपोज किया है पूरे ग्रुप ने। और ये गाना यही बता रहा है कि एक गाना है हमारे प्रहलाद जी, जो हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने वो एक बार गा रहे थे हमारे यहाँ पर, होशियार रहना कि जगत में चोर आवेगा। जब वो गा रहे थे तो नीति के दिमाग में ऐसी कुछ आया कि ये जो शरीर है ना, ये मिट्टी की तरह है। अभी कल हम शिशुवन स्कूल में गए, तो वहाँ पर हमने गाना किया, तो बच्चों से निकल के आया कि ये चेन है, हम कुछ अच्छा करते हैं तो हैप्पीनेस की चेन चल जाती है, हम कुछ बुरा करते हैं तो एंगर की चेन चल जाती है। तो ये गाना भी शायद वो शिशुवन के बच्चों ने हमें सिखाया है, कि इसका असली मतलब कि हम अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, वो चेन चल जाएगी। सो सुनते हैं माटी की है काया फ्रॉम द मंजिल मिस्टिक्स बैंड। शरीर है ना, हम कुछ भी कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, हमें ये याद रखना है कि बाय द एंड ऑफ द डे हम सब ने खत्म हो जाना है। इस जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा चलता रहेगा, हम सब ने एक दिन मर जाना है। बस जब हम जिंदगी जी रहे हैं, चाहे खुशी मिले या दुख, वो खुशी और दुख हम खुद अपने हाथों से लिखते हैं। और वो कैसे लिखते हैं
सुनिएगा। शुक्रिया भैया। इसमें ना गिटार आ रहा है बहुत ज़्यादा, पर हमारा वोकल नहीं आ रहा, तो हमारे दोस्त लोग क्या सुन रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा। Good morning, everyone. So first of all, I would like to say Namaste. Thank you. सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए। स्पेशली शिशुवन के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कल हमें बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ वर्कशॉप में, और आज हमारे कुछ नए फ्रेंड्स आए शिशुवन से, सो थैंक यू। नेक्स्ट सॉन्ग जो हम गाने जा रहे हैं उस गाने का नाम है चश्मे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग और बहुत कैची सॉन्ग है। प्लीज़ आप सभी हमारे साथ गाएं। ये गाना जो है, ये गाना भी हमारे ग्रुप ने ही लिखा है। अनुराग को लगा कि बहुत कुछ चल रहा है हमारी सोसाइटी में, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, कलर को लेकर, तो उसे लगा कि हमें कुछ लिखना चाहिए इसके ऊपर भी, तो ये भी कहीं ना कहीं कबीर जी से ही इंस्पायर सॉन्ग है। सो गाने का नाम है चश्मे। तो जहाँ जहाँ चश्मे पार्ट आएगा तो प्लीज़ आप सब लोग हमें ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू। तो यहाँ पर किस किस ने चश्मा पहना हुआ है, हाथ खड़ा करेगा? बढ़िया है। तो हम आपके लिए नहीं है ये गाना, तो आप लोगों को लगा होगा कि चश्मे वाले लोगों के लिए गाना है। वैसे नीति भी यहाँ पर हमारे चश्मा पहनती है, पर आप लोगों के लिए नहीं है। हम बताएंगे क्या है। तो इसमें एक कोरस है जो आप हमारे साथ गाएंगे, गाने के बीच में हम बताएंगे, ठीक है? जैसे ही वो कोरस आएगा मैं हाथ खड़ा करूँगा, आप याद करना कोरस और हमारे साथ गाना, ठीक है? मज़ा नहीं आता जब लोग हमारे साथ नहीं गाते, ठीक है? तो हम बहुत अच्छे से सब साथ में गाएंगे, ठीक? कितने लोग गाने वाले हैं हमारे साथ? मैं बता रहा हूँ, झूठ मत बोलो, हाथ अभी भी नीचे कर सकते हो। चलो ठीक है। चश्मे।
चश्मा पहन रखा है आपने, जिससे क्लियर दिख रहा है, इसकी बात नहीं कर। तो इस चश्मा क्या है? चश्मा रूपी जो शरीर है, इसमें लाइक्स डिसलाइक, हमारी जाति, हमारा धर्म जो भी है वो रंग है हमारा, और हम ना दुनिया को उसी रंग से देखने की कोशिश करते हैं। और कभी कभार हमें बचपन से ही फोर्स किया जाता है कि इस रंग से देखो। अब नीति ने ये चश्मा पहना हुआ है, इसको तो जिंदगी में बहुत सारे कलर दिख रहे हैं। अब रंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रंग क्या है, लाल रंग क्या है और नीला क्या है, हरा क्या है और पीला क्या है, ये तो हम सबको पता है। तो ये चश्मा नहीं उतारना, हमें खुद को मार नहीं देना, चश्मे का रंग पे चेंज करना है। जो रंग है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब इसके बाद जो हम कहेंगे बहुत लोगों को शायद बुरा लग जाए, पर ये वो है जो हमने देखा। ये जो रंग है ये अड़चन का बन रहा है, सुनिएगा। तो ये धर्मों को हम कुछ नहीं बोल रहे, हम ये जो किरदार है ना, मैं किरदार हूँ, ये मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। और मेरे जैसे बहुत हैं यहाँ, 10 तो स्टेज पे खड़े हुए हैं, तो किरदार निभा रहे हम। तो कबीर जी का एक दोहा है, आया एक ही घाट से उतरा एक ही घाट। इसको थोड़ा सा बदला है हमें, ताकि थोड़ा सा लिरिक्स के साथ सिंग कर पाए। तो हम लिखा है, आया एक ही घाट से जाएगा एक घाट। हम सब एक ही जगह से आते हैं, मतलब कोई इंसान ऐसा नहीं है जो हाथी के पेट से पैदा हुआ हो, इंसान के पेट से पैदा हुआ है ना। तो आया एक ही घाट से जाएगा एक घाट, ये भगवान पूछ रहा है। यार पता नहीं क्या होता है बीच में कि जब तू ऊपर वापस आ रहा है तो डिविजन में। सुनिएगा कबीर जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। Boys. Girls. Okay, boys.
मैं आशा करता हूँ कि आज से या अगले हफ्ते से या 10 साल बाद में ये जो चश्मे का रंग है ये उतर जाएगा। थोड़ा थोड़ा फीका तो पड़ गया होगा आज। अच्छा हाय, कैसे हो सब? अच्छा अच्छा, कितने लोगों को सवाल पूछना पसंद है यहाँ पर? अच्छा ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को गाना पसंद है यहाँ पर? सबको पसंद है, साथ सबको पसंद है। अच्छा, जो अगला गाना है वो एक सवाल है जो रिसेंटली हमने लोगों से पूछना शुरू किया है। और जब हम म्यूजिशियन हैं, हम सवाल ना गा के पूछते हैं, तो ये बहुत सारे सवाल हम एक साथ पूछने वाले हैं। सवाल है कि ये जो कियोस्क है, ये जो जंजाल मचा हुआ है, सूरत का, मूरत का, काया का और माया का, ये जो जंजाल है, ये कियोस्क है, ये क्यों है? तो ये गाना है, ये मतलब हम जब बैठते हैं तो ऐसे हम आज बैठक टाइप की हो रही है, तो हम बोल रहे हैं कि भाई साहब आज सब बैठे हैं यहाँ पर, तो एक दूसरे से सवाल पूछ लेते हैं और थोड़े थोड़े सॉल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कितने लोग गाएंगे हमारे साथ? बहुत बढ़िया। गाने का नाम है सूरत मूरत, जो लिखा है हमारे पूरे बैंड ने और कंपोज भी हमारे ग्रुप ने किया है। आशा है आपको पसंद आएगा। एंड ये गाना हम पहली बार स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, और ये गाना स्पेशली हम कबीर फेस्टिवल मुंबई के लिए हमने ये लिखा है गाना। आसान है गाना, गा सकते हैं हम साथ में। सूरत मूरत काया माया काहे ये जंजाल, सूरत मूरत काया माया काहे ये जंजाल। आओ साधु बैठे पूछे सबसे एक सवाल। गाएं सब साथ में। सूरत मूरत काया माया काहे ये जंजाल। सूरत मूरत काया माया काहे ये जंजाल।
एक जान की कीमत पहनावे से करता है इंसान, काया कद का कुछ ना होवे क्यों ना समझे ये नादान। एक जान की कीमत पहनावे से करता है इंसान, काया कद का कुछ ना होवे क्यों ना समझे ये नादान। ये बने सब सबको होना एक इंसान, कर कमाई करोगी कुछ क्या करेगा पैसे लाख। ये बने सब सबको होना एक इंसान, कर कमाई करोगी कुछ क्या करेगा पैसे लाख। है फरेबी दुनिया एक दिन लूट लेगी माँ। सूरत मूरत काया माया का है ये जंजाल। सूरत मूरत काया माया का है ये जंजाल। आओ साधु बैठे मुझे सबसे एक समान। क्या साथ में गाएं हम सब लोग एक साथ? सूरत मूरत काया माया का है ये जंजाल। सूरत मूरत काया माया का है ये जंजाल। सूरत मूरत काया माया का है ये जंजाल। पंद्रह मिनट ठीक है। ठीक है सर, 15 मिनट में 3 गाने करेंगे हम। ठीक ठीक है। सुन, अच्छा अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पर बोलते हैं घर वाले क्या आवारागर्दी करता रहता है? ये भाई बहुत ज्यादा तंग है सर। आपको बहुत ज्यादा बोला जाता है सर, मैं भी उनमें से एक हूँ, बहुत बोला जाता है। तो ये वो वाला आवारा नहीं है जिसको हम बाहर दुनिया में लोग बोल रहे हैं। ये वो वाली आवारगी है जिसके लिए हम आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह घूमते रहते हैं। तो ये गाने में आप देखना हम इस आवारापन में हम क्या क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गाना लिखा है नीति ने और इसको कंपोज किया है पूरे मंजिल म्यूजिक ग्रुप ने।
सवाल है, आप लोगों को क्या गाना है? क्या गाना है? सब गा लेते हैं साथ में? शुक्रिया। तो हमारा अगला जो सॉन्ग है वो पहले ही प्रीति दीदी ने बता दिया। जो ये गाना है ये हम सब टीचर्स को, स्पेशली प्रहलाद जी, जो हम सब की हमेशा से इंस्पिरेशन रहे हैं। कोई भी गाना जब हम लिखने बैठते हैं तो हम उन्हीं को सोचते हैं कि प्रहलाद जी इसके बारे में क्या बोलेंगे, प्रहलाद जी इस सिचुएशन में कौन सा गाना बोलेंगे। साथ ही साथ हर वो जना जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है, शिशु वन के बच्चे जिन्होंने हमें कल बहुत एक बड़ी बात सिखा दी, साइकिल वाली, उनके लिए, सबके लिए गाना है। गाने का नाम है वारी जाओ रे, जो हमें सिखाया था शबनम दीदी ने, और उसको हमने थोड़ा सा रिक्रिएट किया है, थोड़ा मिस्टिकल टच में। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। हेलो हेलो। बच्चों, आप में से कौन कौन था कल वर्कशॉप में? कोई नहीं था? कौन कौन था? कोई नहीं? कल हमने एक रूल बनाया था, अगर कोई शोर करेगा तो हम बोलेंगे ताक धिनादिन और बच्चे बोलेंगे धिन धिनादिन। तो अभी आप लोग बहुत शोर कर रहे हैं, तो एक बार वो ट्राई करें। मैं बोलूंगी ताक धिनादिन, आप बोलोगे धिन धिनादिन। क्या बोलोगे? लाउडर। ताक धिनादिन, ताक धिनादिन, ताक धिनादिन। प्लीज, थैंक यू। वेरी नाइस। और ऑल्सो किसी का मन डांस करने को है तो प्लीज आ जाइए यहाँ पर। प्रीति दीदी प्लीज कम। और क्या,
ओके 3 cheers फॉर सोमया स्कूल के बच्चों के लिए हिप 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 हिप। अच्छा, जो अगला गाना है, जो लास्ट गाना है, उसमें अगर आप बैठे हुए हो कोई बात नहीं, आपको डांस करने की जरूरत नहीं है, पर आप बैठे बैठे भी डांस कर सकते हो, ठीक है। हेलो अभी भी ऊपर से शोर आ रहा है, उनको बोलेंगे हम ताक दिना देन। चलो ठीक है। केसरिया पधारोनी मारे देश देश रे पधारोनी मारे
चलो ठीक है, वंस मोर केसरिया वाला में होगा तो कौन कौन नाचना चाहेगा? तो जहां पर बैठे हुए हैं, चैलेंज है, जहां बैठे हुए हैं वहीं बैठे बैठे नाचना है, ठीक है? अच्छा नहीं, जहाँ बैठे हैं वहाँ खड़े होके नाचना है। और जहां बैठे हैं वहां खड़े होके भी नाच सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। कितने लोग नाचने वाले हैं पहले बता दो, हम उतनी एनर्जी से गाएंगे। कम गाइस, एक साथ। और जो नहीं नाचने वाले, कितने लोग गाने वाले हैं हमारे साथ? बहुत सारे लोग हो गए सुशांत, बहुत सारे लोग हो गए। शुरू करते हैं। पधारो मारे देश, 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 अच्छा गाना पड़ेगा सबको। पधारो मारे देश, पधारो मारे केसरिया वाला, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, पधारो मारे केसरिया वाला, केसरिया वाला, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, पधारो मारे थैंक यू सोमाया कॉलेज, थैंक यू सो मच मुंबई, थैंक यू सो मच कबीर फेस्टिवल, थैंक्स फॉर द लव। मैं एक बार अपने ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। ऑन acoustic guitar we have सुशांत, on electric guitar our injured player of the day सागर। सागर के कल आंख में बहुत चोट लग गई थी और उसके बाद भी सागर को, आई नो सागर को अभी बहुत दर्द हो रहा है आंख में। वी हैड प्रीति, रश्मि, नीति, मानिक, साद, शिवम और मैं अनुराग। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड हमें और सुनने के लिए आप हमें फेसबुक पे मिल सकते हैं। हमारा नाम लोग गलत समझ लेते हैं, कई लोग हमें मंजिल बिस्किट, कभी मंजिल मिस्टेक्स, कभी मंजिल मिस्ट्रीज, सो कभी मंजिल माई स्टिक और मैजेस्टिक भी बोलते हैं। फॉर्चुनेटली हमारा नाम मंजिल मिस्टिक्स है। इस वाले मिस्टिक में एस लगा दो और आगे मंजिल, और आप हमें फेसबुक पे पा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? इसमें कहानी में गाना तो नहीं है और ना नाच है, लेकिन ये कहानी जो मैं आज सुनाने जा रहा हूं, अरे बाप रे, देखिए कहानी सुनाने तो मैं आप ही लोगों को आया हूं, लेकिन अगर इतना शोर होगा तो मैं अपने आप को भी नहीं सुना पाऊंगा। तो इससे पहले कि मैं ये कहानी सुनानी शुरू करूं, इस कहानी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को। इसका नाम है दास्तान खाना बदोश। खाना बदोश उर्दू या फारसी वर्ड है, पर्शियन वर्ड है नोमैड्स के लिए। नोमैड्स लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होता है? नोमैड कौन होता है? जानते हैं कौन होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है खाने के लिए। हाँ बस बिल्कुल वही, पर ये जो खाना है ये वो वाला खाना नहीं है, ये दूसरा वाला खाना है जो खाना बदोश में है।
तो ये कहानी मैंने वैसे बहुत सारे नोमैड से मिलकर, उनको देखकर, उनके जीने का तरीका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर कर उनसे इंटरैक्ट करके ये तैयार की है। 1-1.5 साल राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, तरह तरह के इलाकों में जाकर उनसे मिलकर। अब पॉइंट ये भी है कि हम इनकी बात यहाँ क्यों कर रहे हैं आज। तो बहुत ही जल्द मुझे लगता है एक जनरेशन आने वाली है जब बच्चों से पूछा जाएगा कि भाई ये हमें दूध कहाँ से मिलता है, लोग कहेंगे अमूल से या मदर डेयरी से। लेकिन हम ये भूल गए कि कोई आदमी कहीं किसी गांव में है जो पशु को पालता है, वो दूध निकालता है तो हमारे घर भी दूध पहुंचता है। दूसरी बात ये कि आप लोग भी स्कूल जाते हैं, आपके माँ बाप भी ये चाहते होंगे अच्छा आप स्कूल पास कर लें, आपको बड़ी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, फिर आपको एक स्टेबल जॉब मिल जाए और आपकी लाइफ सेटल हो जाए। लेकिन खाना बदोश जो है वो सेटल होने में विश्वास ही नहीं रखते हैं। वो जैसा कि आपने बताया कि चलते रहते हैं खाने की तलाश में, लेकिन चलते रहते हैं। तो ये उनके बारे में कहानी है। इसमें बहुत सारी एनिमल स्टोरीज भी हैं, क्योंकि चरवाहा अपने हर्डर के बिना, अपने हर्ड के बिना, हर्डर अपने हर्ड के बिना कुछ नहीं है। तो एक शब्द बस मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ, चरवाहा और खाना बदोश के लिए एक और शब्द जो हमारे यहाँ गुजरात में इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं मालधारी। क्या कहते हैं? हाँ, मालधारी मतलब जो माल को धरता है। माल यहाँ पे एनिमल को कहा जाता है, और मालधारी जो कि एनिमल को पाले, उसकी रक्षा करे और उसको चारे की तरफ लेकर जाए। तो बस मैं इतना इंट्रोडक्शन देता हूँ और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थैंक यू। अच्छा, थोड़ा बढ़ा दो। ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं गीता पे हाथ रख के दास्तान सुनाता हूँ, पर कोई बात नहीं, आएगी। गीता भी आती है कहानी में। थोड़ी भारी भारी उर्दू आएगी शायद बीच में, घबराना नहीं है, ठीक है? जितनी समझ में आए ठीक है, जितनी नहीं समझ में आए ओके, लेट गो। द स्टोरी इज ऑल्सो अबाउट लेटिंग गो। सो हाजरीन, आजकल हमारी नस्ल के बहुत से नौजवान एक खास काम में मशगूल हैं, एक खास काम में बिजी हैं, और वो काम है ट्रैवलिंग। कोई इनसे पूछते हैं आप क्या करते हैं, जवाब मिलता है आई एम अ ट्रैवलर। फेसबुक पर उनकी हॉबीज की फहरिस्त देखें तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा वॉन्डरिंग लाइक अ नोमैड। और इनके ट्विटर प्रोफाइल के बायो में लिखा होता है खाना बदोश। बहुत गहरा लफ्ज है हाज़रीन, गौर फरमाइएगा। खाना बदोश यानी वो जो अपना खाना मतलब अपना घर अपने दोष यानी अपने कंधों पर लेकर चलता है। पर सवाल ये उठता है कि खाना बदोशी का आगाज, खाना बदोशी की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई? तो हुआ क्या कि देवराज इंद्र की शादी होने वाली थी, तो उन्होंने सोचा कि इस मौके पर धूमधाम से जश्न मनाया जाए। जितने जानवर थे सबको दावत के लिए बुलाया गया। सारे जानवर बन संवर कर सज धज के दावत के लिए पहुंचे। सबने भरपेट खाया। देवराज और उनकी दुल्हन को बहुत सी दुआएं भी दी और फिर अपने अपने घर लौट गए। बस एक जानवर उस दावत पर नहीं आया। वो जानवर था कछुआ। अब देवराज इंद्र ने कहा सारे जानवर आए, कछुआ नहीं आया, इसको क्या हो गया? जब अगली बार देवराज इंद्र कछुए से रूबरू हुए तो उन्होंने पूछा भाई तुम्हारी गैर मौजूदगी की क्या वजह रही? तो कछुए ने जवाब दिया मेरा ना घर से निकलने का मन नहीं करता, और सच बोलूं तो घर जैसी तो कोई जगह है ही नहीं। यह जवाब सुनकर देवराज इंद्र ने फरमान जारी किया कि अभी इसी वक्त से कछुआ अपना घर अपनी पीठ पर लिए घूमेगा और ये पूरी दुनिया उसका घर होगा। तो इस तरह पहला खाना बदोश वजूद में आया।
लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, खाना बदोशों की एक ऐसी नस्ल, एक ऐसी जनरेशन आई जो मालिक के दिए उस हुक्म को भूल गई, जो चलना, घूम फिर के जीना भूल गई। वो भूल गई कि ये धरती उसका घर है और इस घर की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर है। उसने, हाज़रीन आप लोग तालियां बजा रहे हैं, जब दास्तान गोई में कोई चीज पसंद आती है तो क्या कहते हैं? वाह वाह वाह। अगर आपको कोई चीज पसंद आए तो आप कहिएगा वाह वाह। हाँ, लेकिन मतलब जहां बोलना है वहां बोलना है, हर जगह नहीं बोलना। अगर कोई ऐसी वैसी जगह वहां बोल देता है तो वो आह बन के मेरे दिल तक पहुंचती है। तो खाना बदोशों की एक ऐसी नस्ल आई जो भूल गई कि ये धरती उसका घर है, इस घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, और उसने इस एक घर के कई मकान बना दिए, मकानों के बीच दीवारें खड़ी कर दी और आपस में करारनामे तैयार कर लिए कि कोई हिस्सा दूसरे की अमानत में खयानत नहीं करेगा। लेकिन वो खुद भूल गया कि वो इस घर का बस एक हिस्सा ही तो है और बाकी नस्लों, बाकी पशुओं के बिना वो खुद अधूरा है। तो पेश है, ये सही जगह थी, पेश है दास्ताने खाना बदोश। फरमाते हैं शायर इस्माइल मेरठी, जब आमतौर पे दास्तान गोई की शुरुआत होती है तो शराब पिलाने वाले की तारीफ की जाती है, साकी नामा। लेकिन चूंकि ये दास्तान कुछ अलग है तो मैं दूध पिलाने वाले की तारीफ आपके सामने करूंगा। गाय माता का नाम लेके शुरू करता हूं कि रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। क्या ही गरीब और कैसी प्यारी सुबह हुई जंगल को सिधारी। सब्जे से मैदान हरा है, झील में पानी साफ भरा है, पानी मौजें मार रहा है, चरवाहा आह आह चुमकार रहा है। पानी पीकर चारा चरकर शाम को आई अपने घर पर, दूरी में जो दिन है काटा, बच्चे को किस प्यार से चाटा। उस मालिक को क्यों न पुकारें जिसने पिलाई दूध की धारें। खाक को उसने सब्जा बनाया, सब्जे को फिर गाय ने खाया। कल जो घास चरी थी बन में, दूध बनी अब गाय के थन में। दूध में भीगी रोटी मेरी, उसके करम ने बख्शी सेरी, उसके करम ने बख्शी सेरी, उसके करम ने बख्शी सेरी। अच्छा, अब मैं बता दूंगा कब बोलना है। तो ख्वाहिशमंद गोश, मुसाफिरे पुरहोश, खाना बदोश इस तरह फरमाते हैं कि पहले से भी पहले का आलम यूं था कि पानी ही पानी था बस हर जगह, न रुकने की था न ठहरने की जा। कि तभी एक कछुआ कबीरा, द ग्रेट टर्टल, पानी की सतह से ऊपर आने लगा। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये विशाल महाकाय कछुआ पानी के ऊपर आ गया और ऊपर वाले ने उस कछुए की पीठ पर मिट्टी रख दी। जब वो मिट्टी सूख गई तो धरती बनी और बनाने वाले ने कछुए से कहा कि ऐ कछुए, ये धरती तेरा माल है और तू मालधारी है, तू इसे पालेगा, ये तुझे पालेगी, तू आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा, बाखबर बाशऊर। और इसलिए बावजूद इसके कि तूने धरा को धरा है, तूने धरा नहीं बल्कि तू ही धरा है।
आहिस्ता आहिस्ता उस मिट्टी से जिंदगी पैदा होने लगी कि तरह तरह के फूल खिले हैं, चंद दरख्तों में खोशे खुरमों के लगे हैं, और उसी मिट्टी से ऊपर वाले ने एक और जिंदगी पैदा की, इंसान को बनाया। आदम का जिस्म, वो मिट्टी का पुतला जब तैयार हो गया तो खुदा ने सोचा कि अब इस मिट्टी के पुतले में जान डाली जाए। तो आदम यूं ऐसे लेटा हुआ पड़ा था, यहां सर वहां पैर। अब खुदा ने जो सर से पैर तक जान डालनी शुरू की, अभी कमर तक ही अंदर जान गई थी कि आदम आधा उठ खड़ा हुआ। खुदा ने कहा कि आदम में सब्र नहीं है, इसकी औलादें हमेशा यूं ही जल्दबाजी में रहेंगी। अब ऊपर वाले ने कहा, भाई इतना जल्दबाजी में रहता है, इसको सब्र ही नहीं है, ये तो अपनी हर छोटी से छोटी जरूरत के लिए मुझे आए दिन तंग किया करेगा। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इसकी हर जरूरत का इंतजाम कुदरत में ही कर दूं। खुदा ने आदम से कहा कि देखो भाई, ऐसा है, यहां तुम्हारे लिए तरह तरह के मेवे खाने के लिए मौजूद हैं, भर पेट खाओ, तुम कभी भूख से नहीं मरोगे। यह कुदरत की जिम्मेदारी है। और अगर तुम्हें कभी लगे कि आसपास कुछ खाने को मौजूद नहीं है, तो जहां पशु चलने लगे तुम पशु के पीछे हो लेना, क्योंकि पशु कुदरत के ज्यादा करीब होता है। वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां भतेरा फल होगा। तो साहब, पहले पहल तो आदम की औलादों ने ठीक ऐसा ही किया। जानवरों के पीछे चलते चलते कुदरत के जो फल अपने आप उनकी झोली में आ गिरा करते थे, वही खा लेते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, आदम की औलादें रोज 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 वही फल खाकर ऊब गईं। अब एक दिन उन्होंने सोचा कि ये पशु जो है, ये हमें तरह तरह के दरख्तों की तरफ, तरह तरह के पेड़ों की तरफ ले जाता है, इस पेड़ की तरफ कभी नहीं लेकर जाता। अब हाजरीन, ये जो पेड़ था ये खास था, इसे ऊपर वाले ने अपने हाथ से लगाया था, और इस पेड़ का फल खाने से ये इल्म मिलता था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन ये इल्म किसको कब मिलेगा, ये अल्लाह की मर्जी पे था। और खुदा भी ये नहीं चाहता था कि आदम को ये इल्म मिले, पर आदम को सब्र कहां था। वो चला गया उस पेड़ के पास और उसका फल खा लिया मनाही के बावजूद। और उस फल को खाते ही उसने अपने रहनुमा हजरत मूसा से कहा कि भाई, अब तो अपना काफिया तंग है, तबीयत का कुछ और ही रंग है, कैन वी हैव सम गार्लिक ब्रेड इंस्टेड। ये सुनकर उस नूर से वो गजब भरी आवाज आई कि ओ नाशुक्रे, मैंने तुझे आसमान का खाना भेजा और तू जमीन का खाना खाना चाहता है। अरे मैंने तुझे जन्नत का जायका बख्शा और तू अपनी जन्नत आप ही बनाना चाहता है। तो जा, बहुत पल लिया तू हमारे टुकड़ों पर, अब उसी के पास जा कि जिस मिट्टी से तू बना है। तो हाजरीन, सफर के इस मकाम पर आदम की औलादों के सामने एक दोराहा था। एक रास्ता तो वही कि जहां जानवरों के पीछे चलकर अपना पेट पालना था, और दूसरा रास्ता उसकी दूसरी औलाद ने अपनाया, जहां धरती को चीर कर अपना खाना खुद पैदा करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे आदम की औलाद की भूख नहीं मिटी, बल्कि और बढ़ गई, जमीन की भूख में तब्दील हो गई। और इस जमीन को उसने अपने पसीने से नहीं, अपने भाई के खून से सींचा। वो ये भूल गया कि अगर भाईचारा नहीं रहेगा तो ना भाई रहेगा और ना चारा। तो इन्हीं दो नस्लों, इन्हीं दो भाइयों की मौजूदा शक्ल है चरवाहा कच्छप सिंह और होटल मैनेजर खरगोश कुमार। तो एक बार क्या हुआ कि था एक कछुआ, स्थिर था, दृढ़ था, रखता था धीर, चलता चुपचाप, गाता
कबीर कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, चलना ही तो जगना है, जो दौड़े वो सोए। कछुए के थे कुछ सीधे से कुछ सादे उसूल, रब को मानो या ना मानो कुदरत को ना भूल, मैंने तुमने सबने एक दिन बन जाना है धूल। लेकिन इस बात को दे दी एक खरगोश ने तूल, उसी जिले में करता था वो सबसे हफ्ता वसूल। गरम मिजाज वो रखता था और ऐसी उसकी तेजी कि जब चलता था लगता था चली फौज चंगेजी। अरे उसके तो जीने का मतलब ही था भागम भाग, हवा से बातें करता था और आंखों में थी आग। जहां भी उसकी नजर थी जाती कहता मेरा मेरा, ये चाहिए वो चाहिए, कभी न पड़ा भतेरा। तो अल्फाज के चरवाहे और किस्सों के जुलाहे इस तरह फरमाते हैं, इट्स जस्ट अ फैंसी वे टू से बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, कि एक दिन क्या हुआ कि जंगल के किनारे में खड़ा होकर कच्छप सिंह आसमान में टकटकी लगाए देख रहा था। उसने देखा कि हंसों का एक झुंड उत्तर की तरफ जा रहा था। फिर उसने आसपास जंगल को जो देखा, जंगल गंजा सा हो चला था। कच्छप सिंह को अंदाजा हुआ कि उसके चलने का वक्त आ गया है। उसके पशु भी अपने हाव भाव से कह रहे थे कि हम तैयार हैं। बस अगली ही रात जंगल के बीचों बीच उस बिना दरवाजे के एक कमरे के झोपड़े में मिट्टी के चूल्हे पर उबल रही थी चाय, मथा जा रहा था मक्खन और बाहर बिस्तर बांधे जा रहे थे। जो थोड़ा बहुत मालो असबाब इनके पास था, बर्तन वगैरह, उसे घोड़े की जीन में कसा जा रहा था। लंबरदार कच्छप सिंह अपने कुनबे की कप्तानी करता निकल पड़ा। लेकिन इस कारवां की असली रहनुमा, इसकी असली लीडर थी भूरी। भूरी जो कि इस झुंड की सबसे बूढ़ी भैंस थी। भूरी को बहुत तजुर्बा था। भूरी ने बचपन से लेकर अब तक ये सालाना हिजरत का सफर, माइग्रेशन का सफर कई बार तय किया था। उसने अपनी माँ से, मासी से, बुआ से वो सब सीखा था जो कि एक भैंस को जानना जरूरी होता है। जंगल में चरने के लिए सबसे बढ़िया घास कहाँ मिलती है, कैसे परिंदों और हिरणों की हरकत पे नजर रख के पत्थरों से छुपे चश्मों का पानी पिया जा सकता है, बीमार पड़ने पर कौन सी जड़ी बूटी खानी है, कैसे पूरे झुंड पे नजर रखनी है, उनके टक 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 ताल को सुनकर कहीं कोई आगे ना निकल जाए, कोई पीछे ना छूट जाए। भूरी रास्ते के हर देवधर के दरख्त को उसकी खुशबू से पहचानती थी। उसके लिए खुशबुएं रास्ते के निशान थे और इसलिए बावजूद इसके कि भूरी के आंख और कान कहीं और होते, वो हर वक्त इस बात से वाकिफ होती कि झुंड रास्ते के किस मकाम पर है। वो दूर से अपने चरवाहे के पसीने में हिफाजत को सूंघ सकती थी और चीते और लोमड़ी में खतरे को। पर एक खतरे से शायद भूरी भी अब तक नावाकिफ थी। कूली जमीन पर चलते चलते पार करके एक सड़क पर पहुंची। सड़क बहुत ही बनावटी जमीन थी, भूरी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। थोड़ी बहुत सड़क पर आगे चलकर भूरी रुक गई। भूरी ने दाएं देखा, बाएं देखा, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके पीछे पूरा झुंड चल रहा था, चरवाहों की टोली चल रही थी कि तभी भूरी एक इमारत के चक्कर लगाने लगी। बहुत देर तक चक्कर लगाकर उसकी जुस्तजू में एक डर था, जैसे उसने कुछ खो दिया हो। थक कर चक्कर लगाकर 20 सड़क पर भूरी बैठ गई। उसके पीछे बाकी 25 भैंसें बैठ गईं और चरवाहों की टोली भी रुक गई। हाज़रीन, ये इमारत जो थी ये था होटल रिवर व्यू। वो अलग बात है कि अब ना रिवर बची थी और ना व्यू। 25 भैंसों के सड़क पर बैठ जाने से रास्ता जाम हो गया था। एक एसी गाड़ी में बैठा ट्रैवलर अपने शीशे के उस तरफ से कच्छप सिंह और उसके कुनबे को धिक्कार की नजरों से देख रहा था। शायद कह रहा हो कि पूरी दुनिया बदल गई, ये लोग नहीं सुधरे।
वो दीवानों की तरह हॉर्न बजाए जा रहा था, इस बात से अनजान कि भैंस के आगे बीन बजाने से इनाम में बस गोबर मिलता है। देखते ही देखते इस गोबर की बदबू होटल रिवरव्यू के कमरों में पहुंच गई और शिकायत पर फुर्ती से कदम लेने के लिए मशहूर होटल मैनेजर खरगोश कुमार अब कच्छप सिंह के सामने आ खड़ा हुआ। उसने सड़क की हालत जो देखी, बोला होली शिट। फिर कच्छप सिंह को देख के बोला, ए तुम लोग कहां चले आ रहे हो? है कच्छप सिंह ने कहा, साहब हम तो घर से चले आ रहे हैं और घर ही को जा रहे हैं। खरगोश कुमार बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इतना बड़ा होटल सामने खड़ा हुआ है? साहब होटल ही तो देख रहे हैं। बरसों से ये जगह हमारा पड़ाव रही थी। हमारा पशु सफर करके अपने आप यहां आकर आराम करने लगता था। पास ही एक चश्मा भी था, उसका पानी पीकर हम अपनी प्यास बुझा लेते थे। इस बार आए हैं तो आपका होटल खड़ा देख रहे हैं। देखो मेरे पास तुम्हारे से बहस करने का टाइम नहीं है, हमारे गेस्ट को तकलीफ हो रही है। तकलीफ? साहब आप जानते हैं तकलीफ क्या होती है? आपके मेहमान तो पहाड़ों में छुट्टी मनाने आए होंगे। हमें कोई शौक नहीं अपने डेरे छोड़कर यहां खतरों से खेलने का। एक तरफ चोर लुटेरों का डर, दूसरी तरफ ये शहरी गाड़ियां मजबूरी में चलते हैं साहब। हमारे पशु को ना खाने को मिले ना पीने को, इसलिए चलते हैं। देखो ऐसा है, ये होटल तो यहां से हिलेगा नहीं, तुम लोग अपना रास्ता बदल लो। साहब रास्ता तो एक ही है। खरगोश कुमार ने कहा, मतलब? कच्छप सिंह ने अपनी बीवी और बच्चों के साथ मिलकर पहले तो सारी भैंसें सड़क से एक तरफ की और फिर खरगोश कुमार से बोला, साहब बात उस वक्त की है जब पैगंबर मोहम्मद ने कुरैश के काफिरों से तंग आकर सोचा कि मक्का से मदीने का रुख किया जाए। इमाम अली ने गुफा के रास्ते के साथ 3 ऊंट भेजे थे। उनमें से एक ऊंट पर सवार होकर पैगंबर मोहम्मद 8 रोज में मदीने पहुंचे, जहां सब लोग बेताबी से उनका इंतजार कर रहे थे। किसी ने टीले पर चढ़कर जवाब दिया, अरे रसूल अल्लाह आ रहे हैं। सब लोग खुशी के मारे पागल अल्लाहू अकबर की गूंज आने लगी। ठीक मदीने की सरहद के बाहर रसूल अल्लाह ऊंट से नीचे उतरे और एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठ गए। सब लोग उनके पास दौड़े, उन्हें सलाम किया, मोहब्बत से सारा इस्तकबाल किया गया। जब रवाज पूरे हो गए तो जितने लोग थे मदीने के, वो चाहते थे कि रसूल अल्लाह पैगंबर मोहम्मद उनके घर में मेहमान बने। पर पैगंबर मोहम्मद ऊंट पे चढ़े और आपका हुक्म आया कि मैं ऊंट की लगाम खुली छोड़ता हूं। जहां ये ऊंट जाएगा वहां मैं जाऊंगा, जहां ये ऊंट रुकेगा वहीं मैं रुकूंगा। तो साहब हमारी भूरी भी जहां जाती है हम उसके पीछे हो लेते हैं। जहां हमारी भूरी रुकती है हम वहां रुक जाते हैं। हमारे चलने का तो बस यही एक रास्ता है। कुछ लोग रास्ता भूल जाते हैं, इसलिए वो एक उसूल को याद दिलाने के लिए अपना रसूल भेजता है। मूसा आए, कन्हैया आए, ईसा आए, पैगंबर मोहम्मद आए, सब चरवाहे बनकर आए। ये याद दिलाने के लिए कि इस कायनात के हर जर्रे के बीच एक कशिश है, एक छोटा सा कीड़ा जिसके वजूद की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है, हमारी सांस से ऐसे जुड़ा है कि हमें अंदाजा तक नहीं। हम साथ हैं तो जिंदगी है, साथ नहीं तो कुछ भी नहीं। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, दोनों का गुजारा हो जाएगा। पर क्यों दूं मैं तुम्हारा साथ? क्यों दूं? साहब देखिए, हमारे दीन में तो यही कहा जाता है कि पड़ोसी की मदद करो। अब हमारा बसेरा ना जंगल में, ना पहाड़ों में, ना शहर में, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हर वो जगह जहां भूरी रुकती है वो हमारा घर है।
और उस हिसाब से अगले कुछ घंटों के लिए आप हमारे पड़ोसी हो गए। अब पड़ोसी पड़ोसी की मदद करता है, हम आपकी तकलीफ समझते हैं, आप हमारी तकलीफ समझिए। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर कोई चोरी चकारी का इरादा तो नहीं है तुम लोग का? साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? इन्हीं दो पैरों पे पूरा मुल्क घूमे हैं और जगह जगह जाकर एक ही बात समझ में आती है कि आदमी तो हर जगह एक ही जैसा होता है, क्योंकि आखिर तो हर कोई इंसान है। फर्क बस इतना है कि कोई ईमानदार तो कोई बेईमान है। अब बात रही हमारी, तो हिंदुस्तान में कोई भी चरवाहा हो, वो हमारा लाकड़िया भाई है। उसके हाथ में सोटी देखकर हमारे घर की औरत भी उसके साए में महफूज रहती है, क्योंकि वो ईमानदार है। ये तो बात रही हमारी, आप अपनी कहिए। अच्छा तुम ईमानदार, हम बेईमान। अबे तेरे बाप की जमीन पर जमीन खरीद के लिया हमने होटल है? साहब आप तो खामखा गर्म हो रहे हैं। आप बैठिए, आपको ठंडी ठंडी छाछ पिलाते हैं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी छाछ। अरे साहब बैठिए तो सही। कच्छप सिंह ने अपने कुंडे के लिए चाय चढ़ा ली और मेहमान के लिए ताजा ताजा छाछ बनने लगी। तभी कच्छप सिंह ने खरगोश कुमार से कहा कि मैं तो बस इतना कह रहा था कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। खरगोश कुमार को कुछ समझ में नहीं आई। कच्छप सिंह ने कहा आपने मेमने और भेड़िए का किस्सा सुना है? खरगोश कुमार ने ना में सर हिलाया। कच्छप सिंह ने कहानी शुरू की कि एक बार क्या हुआ कि एक भेड़िए की नजर एक ऐसे मेमने पर पड़ी जो अपनी झुंड से अलग हो गया था। पहले ही इतना बेचारा था, बेसहारा था। भेड़िए ने सोचा इसकी जान में क्या लूं। फिर उसने सोचा कि पहले मैं अपने इरादे को एक शिकायत में तब्दील करता हूं और फिर इसको जाके इसको समझाता हूं। तो भेड़िया उसके पास गया और बोला अबे ओ भेड़ के बच्चे, पिछले साल तूने मेरी बहुत बेइज्जती की थी, सबके सामने मुझे जलील किया था, याद है? मेमना बोला मैं तो पिछले साल पैदा भी नहीं हुआ था। भेड़िया बोला अच्छा, तो तूने मेरे यहां की जमीन का चारा तो खाया है? मेमना बोला नहीं, मैंने तो आज तक घास को चखा तक नहीं। अब भेड़िया बोला अच्छा, तो तूने मेरे यहां के चश्मे का पानी तो पिया था, ये मैं जानता हूं। बोला नहीं, खुदा कसम मैंने अपनी मां के दूध के अलावा आज तक कुछ नहीं पिया। अब भेड़िया झल्ला उठा और बोला मैं यहां से अपनी भूख पूरी किए बिना नहीं जाऊंगा। और ये कह के लपक के वो उस पे कूदा और हड़प के मेमने को निकल गया। साहब हम चरवाहे भी उस मेमने की तरह हैं। लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम अपने जानवर उनके खेतों में छोड़ देते हैं, उनके जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं, डेवलपमेंट के रास्ते में गड्ढा बने हुए हैं। पर साहब बाकी समाज तो धारा है जिसका शोर सबको सुनाई दे रहा है और हमें किनारे कर दिया गया है। पर साहब एक बात बताइए, धारा है तभी तो किनारा है ना, और किनारा है तभी तो धारा है ना। खैर लीजिए आपकी छाछ आ गई और मेरी चाय भी। कच्छप सिंह ने खरगोश कुमार से कहा कि आपको और मेरा रिश्ता भी चाय और छाछ की तरह है। खरगोश कुमार ने कहा वो कैसे? कच्छप सिंह बोला कि पहले हमारे यहां सिर्फ छाछ होती थी, चाय नहीं थी। चाय तो बहुत बाद में आई, लेकिन जब चाय आई तो हर जगह उसका बोलबाला हो गया, ग्रीन टी, फलानी टी, ढंकानी टी, आप तो जानते ही हैं। लेकिन जब पहले छाछ थी तो छाछ कहती थी, थोड़ा गाना है, रंग मेरा है मक्खन वर्गा, रूप भी मेरा सुच्चा। रंग मेरा है मक्खन वर्गा, रूप भी मेरा सुच्चा। दुध मलाई मापियो मेरे, मेरा असला उच्चा। जेड़ा मैनू रिड़कन बैठे उस दे वारी जावा, खड़के टोल मदानी वाला मैं विच पंगड़े पावा। छाछ कहती है चाय से कि मैं लोगों की सेहत बनाऊं, तू पई सेहत बिगाड़े। मैं पई ठंड कलेजे पाऊं, तू पई सीने साड़े।
गाला कर दी थक दी तू जीबनू ला ले ताला खंड भी कौड़ी कित्ती आते दुध भी कित्ता काला मेरी चौधर चार चुफेरे तेरी मनता थोड़ी मैं देसां दी सूबे रानी तू परदेसन छोरी देस पर आए आ तू रानी दी साली बन बैठी अग मंगण आई सी करवाली बन बैठी चाय जवाब देती है मेरे हुस्न को जो पहचाने उसका दिल में ठगती हाँ है मेरा रंग यूं काला लैला जैसी लगती मैं हूं यहां की देवी और सब है मेरे पुजारी सेठ भी मेरे भजन है गाए और जपता है भिकारी फिर चाय कहती है छाछ से कि बैठी रह तू घड़े के अंदर क्यों हो तुझे तकलीफ जब मैं सुंदर मेजों पर रखती हूं तशरीफ मैं क्या जानूं तेरे गुण को मैं क्या जानूं तुझको दूध करे इंसाफ हमारा तो मंजूर है मुझको अब दूध जो है वो चाय छाछ दोनों का बुजुर्ग है तो वो लंगड़ाता लंगड़ाता आता है और कहता है किसको आज सयानी बोलूं पगली बोलूं किसको मेरा तो दोनों से रिश्ता दोनों खींचे मुझको कि छाछ गई तो जाएंगे पीछे घी और खीर पंचामृत भी जाएगा संग में भला शरीर इश्क मोहब्बत जाएंगे पीछे रांझा हीर तो चाय और छाछ तुम दोनों ही काबिल हो अब खुद कर लो निपटारा प्यार का रिश्ता जिंदा रखना मरे न भाईचारा प्यार का रिश्ता जिंदा रखना मरे न भाईचारा फिर कच्छप सिंह खरगोश कुमार से बोला लेकिन साहब कमाल की बात देखिए कि इस वक्त आपके हाथ में चाय है और आपके हाथ में छाछ है और हमारे हाथ में चाय क्योंकि जमाना बदल रहा है मेरा छोटा लड़का वो नहीं चाहता जानवरों को लेकर घूमना फिरना उसे इस काम में सिर्फ दुख दिखता है सुख नहीं दिखता सिर्फ बीता हुआ कल दिखता है आने वाला कल नहीं दिखता और साहब चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है हम ही हम हैं तो क्या हम हैं तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो खरगोश कुमार कच्छप सिंह से कहा भाई वो सब तो ठीक है कच्छप सिंह लेकिन तेरा बेटा ठीक कहता है ये बंजारापन छोड़ कहीं जमीन ले ले खेती कर और खुश रहे कच्छप सिंह बोला साहब हम खुली हवा में सांस लेने वाले लोग हैं लेकिन आजकल तो पानी को बोतल में बंद कर रहे हैं दूध को थैली में बंद कर रहे हैं हमें तो हमारी बस आज की जरूरत पूरी हो जाए उतना ही काफी है जमाखोरी किस लिए और किसके लिए हम आने वाले कल की भूख का डर नहीं पालना चाहते खरगोश कुमार बोला अच्छा तो तू कह रहा है कि आदमी को खेती नहीं करनी चाहिए नहीं नहीं साहब मैंने ये कब कहा देखिए एक आदमी इंसान का पेट चीरता है उसे लूटने के लिए दूसरा आदमी किसी का पेट चीरता है उसका इलाज करने के लिए तो पेट चीरना थोड़ी गलत काम हो गया नहीं तो तुम क्या कह रहे हो अकाल आएगा तो भूखे मरोगे साहब अगर ये सारी जमाखोरी इंसान दुनिया की भुखमरी मिटाने के लिए कर रहा होता तो दिक्कत ही किस बात की थी मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि अगर कहा जाए हमसे कि भाई तुम लोग भटकना बंद करो कहीं जमीन ले लो और किसानों से कहा जाए तुम लोग जमीन छोड़ दो शहर में आके मजदूरी करो तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग कुदरतन हैं वैसे ही साथ नहीं रह सकते खरगोश कुमार सोच में पड़ गया तभी कच्छप सिंह ने उससे पूछा साहब आपके अंदर भी कोई सफर चल रहा है खरगोश कुमार ने कहा मतलब बोला कि असली सफर तो हमारे अंदर चलता है खरगोश कुमार ने कहा और इस सफर की मंजिल क्या है कच्छप सिंह ने कहा आपने सैलाब का किस्सा सुना है बोले नहीं बोले एक बार क्या हुआ कि इस धरती पर एक बड़ा जालिम राजा रहता था
धरती के सारे साधन संसाधन ऐसे लूट रहा था कि पूछिए मत। अरे बड़े बड़े पेड़ लकड़ी के लिए काट डाले, पहाड़ों को तबाह करके खदानें बना दी, और खेतों को बनाने के लिए बड़े बड़े जंगल उसने साफ करवा दिए। फिर एक दिन सारे पीर फकीर उससे तंग आकर बोले कि हम इस राजा को भस्म कर देंगे। उन्होंने मिलकर एक यज्ञ किया, और जैसे ही वो यज्ञ पूरा हुआ, वहां पड़ा एक घास का तिनका रॉकेट बन गया, और वो रॉकेट उन्होंने राजा पे फेंक दिया। राजा मर गया, और राजा के जिस्म से सारी गंदगी हटाकर जो बच गया उससे नया राजा बनाया। इस राजा का नाम था राजा पृथु, यानी वो जो पृथ्वी की रक्षा करेगा। लेकिन अभी राजा पृथु सिंहासन पे आकर बैठे ही थे कि उनकी प्रजा ने आकर बताया, महाराज धरती बोल रही है कि बीज से अंकुर नहीं पैदा होने दूंगी। राजा पृथु ने धरती को दरबार में बुलाया, बोले ऐसा क्यों कर रही हो? ये सुनकर धरती जो थी वो गाय माता बन गई और वहां से भाग ली। अब गाय पीछे आगे आगे, राजा पीछे पीछे, गाय आगे आगे, राजा पीछे पीछे, कि तभी राजा ने अपने कमान में तीर लगाया और गाय को धमकाया कि उसे निशाना बना दिया जाएगा। यह सुनकर गाय पलटी और रुक गई, बोली कि मैं थक गई हूं, मैं थक गई हूं इंसान की इस लूट खसोट से। पर एक बात याद रखो कि अगर तुमने धरती को मार डाला तो पूरा का पूरा जीवन मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। यह सुनकर राजा पृथु ने यह फैसला लिया कि आज से हमारी प्रजा धरती से बस उतना मांगेगी जितने की उन्हें जरूरत है। लेकिन साहब ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे वक्त बीतता है आदमी जो है वो चोट को भूल जाता है, और फिर उसी एक धरती के बहुत सारे राजा हो गए, सब अपनी मनमानी करने लगे। और फिर एक फकीर फिर से गजबनाक हुआ, बोला मैं इन सारे राजाओं को भस्म कर दूंगा। लेकिन किसी ने आकर उसे बोला, अरे नहीं नहीं, अरे तुम ऐसे मत करो, हालात उतने बुरे नहीं हैं जितने नजर आ रहे हैं। 2 साल दो, गवर्नमेंट बदल जाएगी। पर वो फकीर बोला, मैं इस अपने गुस्से का क्या करूं, मेरा गुस्सा तो आग का गोला बन गया है। तो वो आग का गोला जो था वो एक घोड़ी बन गया, और वो घोड़ी जो है वो समंदर की तह में रहती है। जब ये घोड़ी आग उगलती है तो समंदर का पानी भाप बनता है, भाप से बादल बनता है, बादल फिर से पानी बरसाता है। लेकिन अगर इंसान अपनी आदतों से बाज नहीं आया तो वो घोड़ी आग उगलना बंद कर देगी और समंदर का सारा पानी उमड़ के इंसान की सारी बस्तियां अपने अंदर समेट लेगा, और सारा आलम पहले से भी पहले की तरह हो जाएगा, जब पानी ही पानी था बस हर जगह। कच्छप सिंह ने खरगोश कुमार से कहा, साहब ये कहानी नहीं है, ये मैंने अपने सामने होते देखा है। खरगोश कुमार बोला, कैसे? बोले पहले तो ये सारी जमीन कुदरत की थी, हम जहां चाहते थे अपने अपने पशु को लेकर गोचर मैदानों में चरवा लिया करते थे, अपना पेट पाल लिया करते थे। फिर राजा आ गए, राजा बोले नहीं नहीं ये जमीन हमारी है, इस पे खेती होगी। फिर राजा गए तो बहुत सारी अलग अलग सरकारें आ गई, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पता नहीं कौन कौन सी सरकार। साहब सरकार बोले ये जमीन हमारी है। हमने थोड़े सा चारा मांगा तो कहते अच्छा अच्छा भटकना बंद करो, थोड़ी सी जमीन ले लो। फिर चरवाहों ने जमीन पर मालिकाना हक मांगना शुरू कर दिया, कुछ को मिल भी गया तो फिर चरवाहा ही कहने लगा ये जमीन मेरी है। पर साहब 2 साल पहले ऐसी बाढ़ आई कि इंसानों की सारी बस्ती अपने साथ ले गई, और कुदरत ने अपनी बात साफ कर दी कि आखिर ये जमीन, ये धरती उसी की है। कच्छप सिंह ने अपनी बात पूरी की ही थी कि भूरी उठ खड़ी हुई और आगे चलने लगी। भूरी को चलता देख झुंड की बाकी भैंसें भी उसके पीछे हो ली।
जब चरवाहों की टोली ने देखा कि उसका पशु आगे चलने लगा है, उसने अपना पूरा आशियाना समेटा, सबको अपने कंधों पर डाला। कच्छप सिंह ने खरगोश कुमार को शुक्रिया अदा किया। अलविदा कहकर चरवाहों का कारवां आगे चल पड़ा। जरा आहिस्ता बोल, आहिस्ता, ये धरती सहम जाएगी। ये धरती फूल और कलियों की सुंदर सज है नादां, गरज कर बोलने वालों से कलियां रूठ जाती हैं। जरा आहिस्ता चल, आहिस्ता, ये धरती मां का दिल है, इस दिल में तेरे वास्ते भी प्यार है नादां। बुरा होता है जब धरती किसी से तंग आती है। तेरी आवाज जैसे उठ रहे हों जंग के शोले, तेरी चाल गोया उठेंगे आज ही हश्र के फितने। मगर नादान, मगर नादान, ये धरती अमर है, गैर फानी है। कई जंगें हुई लेकिन ज़मीं अब तक सुहानी है। कई जंगें हुई लेकिन ज़मीं अब तक सुहानी है। कई जंगें हुई लेकिन ज़मीं अब तक सुहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you all, and thank you once again, Somaya College, for associating with us every year and for hosting all our artists. A big hand for all our volunteers, a big hand for all the children who have come. And once again, a big hand to Somaya Vidya Vihar.